Hey guys, welcome to Nerd Dose and welcome to this very special interview of Priyanshi Kothari, a first year student of NLSIU Bangalore, a previous year CLAT topper. And on top of that, someone that you should really meet because you have been solving her questions quite a lot of times. She is also one of the team members of Nerd Dose who prepare the question for Mission 35 Plus. So, Priyanshi, thanks a lot for joining us today and thanks a lot for agreeing to do this interview. So Priyanshi, हम start करते हैं interview from your CLAT journey. Tell us a little about yourself, how you prepared, what rank you got, was it your first attempt and everything. Okay, so basically by now you know my name. I'm Priyanshi Kothari. I got an AIR of 67 in CLAT 2021. I am from Punjab. My city is Bathinda. And apart from that, I'm a fresher. So I started my preparation in September 2019 and approximately took 2 years for me because the exam was on 23rd July 2021. So 2 years of preparation and here I am at NLS. And is your first year over at NLS? कैसा और अभी exams बाकी है? What's No, going we on? had अभी exams like अभी हमारे exams हुए हैं जून second को हमारा last exam था and अभी हमारा first year खत्म हुआ है. And you are back at home? Yeah, I'm at home right now. Oh, great. And this was the first trimester that you did on campus, right? No, this is the second trimester. This is the second trimester. Yeah. Okay. So coming back to the CLAT preparation, Priyanshi, now there are very few days left to CLAT preparation. We are recording this interview on the 5th of June and we are aiming to release it by the 7th. So जब तक हम release करेंगे, there will be approximately 12 days left to CLAT. So can you Yes. tell us a little about those last 10, 12 days or the last 2 weeks? How was your feel? How were you feeling the pressure? क्या चल रहा था आपके दिमाग में? What all were you doing? So last के जो 12-14 days थे approximately 2 weeks, it was a lot of mental pressure for sure because जब तुम किसी चीज पे इतनी ज्यादा एफर्ट्स पुट करते हो एंड देन यू वांट लाइक सॉरी एक्सपेक्टेशंस भी हो जाती हैं कि ऐसा चाहिए रिजल्ट एंड तब मॉक्स देने पड़ते हैं एंड देन यू डू नॉट फाइंड अ गुड रैंक इन योर मॉक और मे बी क्वेश्चंस गलत होते हैं तो उस वजह से लाइक मेंटली तुम्हारा ब्रेन बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हुआ होता है बट एट द सेम टाइम यू नीड टू रियलाइज that these are the days that are very very important for preparation, right? Last 12-15 days में a very important part is the revision, जो especially GK part की जो तुम इतनी देर से करते हुए आ रहे हो. You should be very very clear with your basics. Time तुम्हें हर चीज के लिए बहुत कम चाहिए होगा और like you start reducing your time for everything. You want कि तुम्हारे 120 minutes में 150 questions हो जाए और easily solve हो जाए. Not entire set, but you want कि एक अच्छा marks के साथ तुम हर चीज करो. So by now it's like very high pressure, very high expectations. Or very high pressure में a major part should go to GK, and since you are the person who is in making a lot of GK questions, so can you tell us कि last के 12-15 दिन में how do we revise GK? because revision करना है GK का ये तो सब लोग बोलते हैं, हर इंसान आके बोल रहा है बच्चों को कि GK रिवीजन करो, GK रिवीजन करो. कैसे करना है ये बहुत कम लोग बता रहे हैं और जो लोग बता रहे हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि 2 घंटे 3 घंटे में पूरा GK रिवाइज कर देंगे. तो what is the right approach? No, अच्छा, it's not, there are two things to this. एक तो वो लोग होंगे जिन लोगों ने अपने खुद के नोट्स बनाए हैं और एक वो लोग होंगे जिन लोगों ने कहीं से पढ़े हैं लाइक कंपेंडियम्स या क्वेश्चन सॉल्व किए. सो फॉर द फर्स्ट सेट ऑफ पीपल आई बिलीव अगर तुमने अपने नोट्स बहुत ढंग से बनाए हैं देन इट्स वेरी गुड टू रीड योर नोट्स राइट फ्रॉम द बिगनिंग बिकॉज जब तुमने खुद अपने हाथ से वो चीज लिखी है तो इट स्टेज इन योर ब्रेन फॉर लॉन्ग. And apart from that, you know which are the important points. You need not like just turn off pages and go to different sites and look for things, right? So that's a very good source to begin with and maybe even to end with. That depends कितने comprehensive तुम्हारे notes हैं. But for people who have not, उनके लिए थोड़े ज़्यादा efforts put करने पड़ेंगे. You need to look for sites. Like for example, I prefer compendiums जिसमें एक month का entire set of questions या फिर like topic wise बहुत ही detailed view कोई चीज हो उसके ऊपर तुम आराम से वो चीज पढ़ सकते हो ताकि when you read go through them it's very clear to you कि इस topic से that's the maximum like. और whenever you do a topic that's very important that you ensure कि अगर इतना मैंने पढ़ लिया ना एटलीस्ट 5 में से 4 क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हूँ. इट डजंट मीन कि तुम 2 चीजें पढ़ लो किसी टॉपिक के बारे में कि इंपॉर्टेंट डेट क्या है, किसने किया था, प्राइम मिनिस्टर, लाइक
इंपॉर्टेंट चीजें ठीक है, बट यू नीड टू गो एट डिटेल्स एट टाइम्स, बिकॉज द क्लैट पैटर्न जो अभी है उसमें वो डिटेल्स पूछता है एंड मोर अ मेमोरी बेस्ड टेस्ट. सो यू नीड टू लर्न थिंग्स कि क्या चीज कहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगी. And guys, let me tell you that Priyanshi is our resident expert in GK because she has the one of the highest score of GK in CLAT 2021. तो अगर आप CLAT 2021 का पेपर देखोगे तो बहुत ज़्यादा एब्सर्ड सा GK आया था, कुछ कुछ सवाल खराब से आ गए थे. And despite that, she scored one of the highest ranks. One of the highest ranks, obviously, which let her go to NLS, which is a testimony in itself. उसके अलावा GK में भी she had one of the highest score, जिससे Priyanshi's score in CLAT really increased quite a lot. So Priyanshi, what exactly do you do when you prepare GK questions? जब आप GK questions बनाते हो तो what are you looking for? What kind of concept that you are testing on? So what is the thought process that is going in your mind? So when I used to prepare questions, like पहले तो एक प्रेपरेशन जर्नी जो मेरी थी, मैंने 2 साल प्रिपेयर किया है क्लैट, तो वो प्रेपरेशन जर्नी बहुत लाइक आपको दिमाग में रख के चलनी पड़ती है. व्हाई? बिकॉज यू स्टार्ट रियलाइजिंग क्वेश्चंस क्या पूछने हैं एंड क्या चीज इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2021 का पेपर देखोगे, देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट आर सोनली मेमोरी बेस्ड, लाइक सर्टन, लाइक फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर कौन है, या उस वे में क्वेश्चंस, वो आप बिना, अगर आपने कभी पढ़ी नहीं है वो चीज, वो आपको चीज आ ही नहीं सकती. बट दैट इज ऑल्सो वेरी इजी बेस्ड क्वेश्चंस, राइट? कि यू नो कि अगर 100 बच्चे पेपर दे रहे हैं, मैक्सिमम पीपल विल नो दिस एंड दिस इज एन इजी बेस्ड क्वेश्चन. सो इफ आई हैव टू मेक अ सेट ऑफ 5 क्वेश्चंस फॉर वन टॉपिक, I make sure there's a mix of easy and tough questions, taki, because that is how a paper is set usually, right? You have some questions that everybody can solve, but there are some questions that only few people who have read the topic in a lot of detail will be able to solve. So like first you have to categorize it on that basis, and second then it comes up कि एक certain topic में important चीजें क्या हैं. Maybe for some it's like it seemed like क्लैट 2021 की जीके बहुत ही absurd थी, बट जब हम हम बनाते हैं जब जीके, we try to make sure that we ask the most ऑप्टिमम क्वेश्चन इन द सेंस कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो पर्सपेक्टिव से, कि बहुत ही कि मैं रैंडम सी चीज या कोई रैंडम सी डेट पूछ लूंगी, मोस्ट ऑफ द पीपल वुड नॉट नो दैट एंड इट डजंट मेक सेंस टू आस्क समथिंग which people would not be able to answer, right? So it's one thing that you ask important stuff, and secondly हर चीज like usually जो चीजें होती हैं like 5 questions में से we try to keep 3 to 4 memory based, but 1 or 2 is more like consider the following statements and what do you think about those statements, right? Because at times अगर तुमने वो questions पढ़ के ही तुम try कर सकते हो solve करना, it's not solely memory based, but you can try solving those questions based on कि maybe कुछ related है, this is not making sense, is it logical कि इससे basis पे ऐसा हो सकता है. So that is something that you can solve even if you've not entirely read the topic. Okay, and वो consider the following question मैंने कई बार देखा है, especially reading your questions, कि एक ही question अगर पढ़ने से क्लैट शायद 2-3 क्वेश्चन उसमें से पूछ लेगा, तो that gives us 5 to 8 questions in a single set of 5 questions, so that is the cherry on the cake. उसके अलावा प्रियांशी, because a lot of people find that उनकी strength है जीके, और 2021 में मैंने ये एक्सपीरियंस के साथ नोटिस करा, a lot of my students also who went in the exam hall with the mindset कि उनकी स्ट्रेंथ तो जीके है, और वो हर मॉक में 35 में से 30, 28 इस तरीके का स्कोर जीके में कर रहे हैं. तो when they went inside the paper और उन्होंने पहला सेक्शन जीके उठा लिया, जीके उठाते से they lost their calm और उनका बाकी का पूरा पेपर बिगड़ गया. तो what were your reaction when you saw the GK paper? Did you also lose your calm? Or what were your thought process during the actual CLAT 2021? Okay, so when I started with my paper, मेरा भी first section GK था because I knew somehow that this is my strength. So I started with GK, and you know it makes sense if you're good in GK because GK is something 10 minutes में you get a good score. If you like push yourself maximum, you get a good score of 30, right? 30 and close to that. So it's like a good strategy. It might be a good strategy for some to start with GK. But when I saw the paper, I made one thing in my mind कि जैसे ही मैं पेपर देने जाऊंगी, एटलीस्ट मेरा कॉन्फिडेंस लेवल मेरा जितना भी रहा है सबसे हाई होगा. इट डजंट मीन आई बी ओवर कॉन्फिडेंट विद थिंग्स, बट अगर मैं खुद ही नहीं कॉन्फिडेंट हूँ तो मेरा पेपर वैसे ही चला जाएगा कि यार मुझसे तो नहीं होने वाला. ये एटीट्यूड, दैट्स द फर्स्ट थिंग यू ऑल नीड टू कीप इन माइंड. आई ऑलवेज से दिस कि जस्ट गो विद द एटीट्यूड कि और किसी का होना हो,
like India में paper out of all the 70,000 aspirants that giving the paper and plus, but तुम्हारा जरूर होगा, like मेरा तो हो ही जाएगा. That's the attitude you need to have in your life, at least on the paper day. And then when I saw the GK, my reactions was, honestly I'm saying this, and this is not like, मैं paper के जब बाहर आई तब मैंने realize किया कि actually my GK was a little absurd, but जब मैं paper में थी, I was like emotionless, to be honest. It was not something very easy, not something very tough. I was like, ठीक है, जो, because the point is, हम सारे बच्चे सेम जीके कर रहे हैं. इट्स नॉट लाइक उन लोगों ने मेरे लिए कोई स्पेसिफिकली अलग से जीके बनाई है. अगर कोई क्वेश्चन बहुत टफ है, मैं नहीं सॉल्व कर पा रही, दैट मीन्स दूसरे वाला भी नहीं कर पाएगा ना. तो दैट ब्रिंग्स अस ऑल ऑन द सेम लेवल. एंड आई न्यू समहाउ कि मैंने जीके बहुत ही डिटेल में की थी, कि अगर वो कुछ एब्सर्ड भी पूछेंगे एंड टू सम पॉइंट मैं वो आंसर कर सकती हूँ. बट अगर कोई क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा टफ है, देन तो आई नो कि किसी का भी नहीं होने वाला. तो उसमें दुख वाली तो कोई बात ही नहीं है कि अगर मैं नहीं कर रही, आई एम गेटिंग लेट्स से 150 में से 149 का हो जाएगा मेरा वो, कि आई एम नॉट गेटिंग वन स्कोर फॉर दैट, दूसरे का भी नहीं होने वाला. सो दैट मेक्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम ये दिमाग में लेके चलो कि अगर कोई चीज टफ है तो वो सबके लिए ही टफ बनी है. लाइक everybody will be on the same level. It's not just me who is getting a disadvantage. तो इस वजह से पेपर में टफ थी जीके, बिकॉज बाद में इट्स लाइक बहुत ही रैंडम टॉपिक्स. हाँ वो था कि मैंने ना पेपर से एक दिन पहले जस्ट एक लिस्ट बनाई थी कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कि ये तो पक्का ही क्लैट पूछने वाला है. बट अगले दिन उन लिटरली 7-8 टॉपिक्स में से कोई भी टॉपिक नहीं आया. सो आई वाज अपसेट अबाउट दैट कि कुछ किया, मतलब थोड़ा बहुत अलग हो गया, कि ये तो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड सा था कि, बट देन इट वाज फाइन कि एवरीबॉडी इज ऑन द सेम लेवल, सो लेट इट बी हाउएवर इट इज. तो इसी लिस्ट से एक और क्वेश्चन जो बार बार अभी मैं रिसेंटली पिछले 7-8 दिन से फेस कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स हैव बीन आस्किंग कि यार आप 50 टॉपिक बता दो जो सबसे कम इंपॉर्टेंट हो, आप 100 टॉपिक बता दो. सबके अलग अलग नंबर से, कोई 10 मांगता है, कोई 20 मांगता है, कोई 50, कोई 100, और सब वो नंबर चाहते हैं कि इतने टॉपिक आप बता दो जिसमें से पक्का फंस जाए. और मेरे पास इसका कोई आंसर नहीं होता है. लेकिन अभी रिसेंटली वी सी दैट अ लॉट ऑफ पीपल आर रिलीजिंग अ लॉट ऑफ लिस्ट. आप जहां देखोगे टेलीग्राम पे कोई लिस्ट आ गई, कहीं पे कोई जूम पे क्लासेस ले रहा है, कोई कहीं और किसी प्लेटफॉर्म पे क्लास आ गई, कहीं पे कोई लिस्ट निकल के आ गई, किसी ने रैंडम बच्चे ने अपने नोट्स बना दिए और वर्ड डॉक्यूमेंट वो पूरा सर्कुलेट हो रहा है. और भले ही उसमें सिर्फ नवंबर के टॉपिक्स है, लेकिन किसी ने लिख दिया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और वो सर्कुलेट हो रहे हैं. तो हाउ डू वी सेव आवरसेल्फ फ्रॉम दिस फियर ऑफ मिसिंग आउट कि यार जब हम हमारे 2-3 सोर्स कर रहे हैं लास्ट के 10-12 दिन में, 3 लोग आके बोल रहे हैं कि हम तो वो वाला सोर्स भी कर रहे हैं, हम तो वो वाली कंपेंडियम भी कर रहे हैं. तो ये आपके साथ हुआ था बिकॉज ऑब्वियसली यू आल्सो प्रिपेयर्ड इन द ड्यूरिंग द पेंडेमिक ईयर, जहाँ पे प्राइमरीली योर प्रिपरेशन मस्ट हैव बीन ऑनलाइन. तो दिस टेलीग्राम एंड अदर सोर्सेज मस्ट हैव बीन वेरी प्रोमिनेंट इन योर प्रिपरेशन एज वेल. तो हाउ डिड यू प्रिवेंट दैट फीलिंग? ओके, सो पहली चीज, जब सोर्सेस की बात आती है, मेक श्योर यू रिलाई ऑन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्सेस, राइट. जैसे आपने वो बोला कि वो एक बच्चे ने लिस्ट, लाइक बच्चे का एक डॉक्यूमेंट था जो कि सर्कुलेट हो रहा था. नाउ his experience is same as let's say mine or maybe someone else, because at least मैं एक स्टिल अलग पर्सपेक्टिव से बोलूंगी, वो एक नॉर्मल कोई भी क्लैट एस्पिरेंट है, राइट. यू कैन नॉट रिलाई ऑन हिम. एंड when I compare this to someone who has already had an experience before, like someone who has a teaching experience, or an institution who already has a lot of experience and experienced teachers, they know कौन से topics आ सकते हैं. Again, कोई भी इंसान ये नहीं बता सकता कि 101% ये टॉपिक आएगा, बिकॉज यू कैन नॉट नो जो इंसान वहां पे बैठ के पेपर बना रहे हैं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था. क्लैट 2021 में भी ऑल हैव सीन कि हमने क्या सोचा था क्या आएगा और क्या आ गया, राइट. किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये पूछेंगे कि वर्ल्ड वाटर डे क्या है, कब, किस दिन आता है. सो दैट इज व्हाई मेक श्योर अ पॉइंट कि ये तो हो ही नहीं सकता कि एवरीबडी नो कि क्या क्या टॉपिक्स आने वाले हैं. इट्स अ लिटिल लक बेस्ड आल्सो कि तो मे बी तुमने वो टॉपिक नहीं किया और वो आ गया, बट देन यू हैव टू जज दिस. अब यहाँ पे गेम ऑफ स्किल क्या है, लाइक आई गेस तुम लोगों ने लीगल में किया होगा गेम ऑफ स्किल, गेम ऑफ चांस वगैरह. तो गेम ऑफ स्किल क्या है यहाँ पे, दैट यू नीड टू मेक श्योर कि तुमने like for me, I used to pick up 3 sources. Like I do not used to go more than those 3 sources. Why? Because at the end of the day, सारी चीजें ही
टॉपिक्स ऑलमोस्ट सेम होंगे, डिटेल्ड लेंथ डिपेंड करेगी, राइट? तो वो डिटेल के लिए मैं अपनी मोस्टली 3 सोर्सेज रखती थी अपने आप को, बिकॉज अगर मैं ज्यादा करूंगी तो लाइक जस्ट टाइम सबके पास लिमिटेड है, जितना ज्यादा टाइम मैं स्पेंड करूंगी अलग अलग चीजों पे, आई थिंक सो मेरा टाइम उतना वेस्ट हो जाएगा। इंस्टेड आई मेक श्योर कि मैं जो टॉपिक्स करूं, जिन सोर्सेज से करूं, बहुत ही डिटेल्ड तरीके से करूं और बहुत ही लाइक प्रॉपरली करूं, कि इसके अलावा अगर मैं एक टॉपिक को 2 या 3 सोर्स से कर रही हूँ, उससे ज्यादा वो पूछेंगे नहीं मुझसे, और उससे ज्यादा डिटेल में मुझसे मतलब देयर इज नो चांस दे कैन आस्क मी मोर देन दैट। वही सेम चीज की 4 क्वेश्चंस हो जाने चाहिए 5 में से, बिकॉज आई डू नॉट एक्सपेक्ट एवरीबडी टू नो 100%। तो इस वजह से कीप योरसेल्फ लिमिटेड टू सर्टेन सोर्सेज। और फियर, इस चीज में फोमो तो है कि क्या पता वो चीज भी आ सकती है, वो नहीं आएगी, बट देन यू हैव टू बी लाइक अ लिटिल स्ट्रांग हेडेड इन दैट सेंस, बिकॉज ऐसे तो फिर जीके ही करते रह जाओगे, क्योंकि जीके इज अ सब्सटैंशियल पार्ट, बट जीके इटसेल्फ टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। लाइक ऑनेस्टली सबसे लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हारा जीके लेगा, बिकॉज इट्स मेमोरी बेस्ड, तो तुम्हें बाद में रिवाइज भी करनी पड़ेगी वो चीज। बट एट द सेम टाइम this is important part, but it's just like 38 if I'm not wrong, that is the exact questions 38 to 40 जो पूछते हैं जीके में। बाकी अब जो तुम्हारा 35 हो गए सब्सटैंशियल 2021 से, ओके 35। अच्छा वो 30 ओके 35 क्वेश्चंस। उसके बाद का जो सारा पेपर है दैट्स मोस्टली रीडिंग बेस्ड, तो तुम्हारी रीडिंग पे भी उतना ही स्ट्रांग होल्ड होना चाहिए अगर तुम्हारा जीके पे जितना है, ताकि अगर तुम 35 में से लेट्स से यू टेकिंग 28 मार्क्स, तुम्हारे बाकी में भी उतनी अच्छे आने चाहिए, सो दैट एन ओवरऑल स्कोर यू गेट इन क्लैट। So, and apart from that, another important question that a lot of aspirant ask कि do we have to read the entire passage in GK, या GK में वो टॉपिक आता है तो पैसेज को इग्नोर करके सीधे टॉपिक पे जा सकते हैं, क्वेश्चंस पे जा सकते हैं? See, for CLAD, what I feel personally is that GK जो questions हैं वो passage में नहीं होते. Passage is usually to introduce yourself, introduce you to the topic. For example, रशिया के ऊपर पैसेज है, रशिया यूक्रेन की जो वॉर चल रही थी, they usually won't let like the answers won't be spilled in the passage, because अगर आंसर्स ही हो पैसेज में तो वो क्वेश्चंस फ्रेम करने का कोई वो ही नहीं है। इट्स लाइक दिया हुआ है तुम्हें थाली में, उठा के खा लो, वो सिस्टम नहीं होगा वहां पे। इसलिए आई नेवर यूज्ड टू रीड द पैसेज ऑनेस्टली। मैं सिर्फ स्टार्टिंग की 1 या 2 लाइन पढ़ती होती थी, ताकि मुझे पता लग जाए कि पैसेज मुझे क्या चीज इंट्रोड्यूस करना चाह रहा है, कि वेयर इज इट हेडिंग टू। एंड वंस आई एम क्लियर विद दैट, आई डायरेक्टली यूज्ड टू स्किप टू द क्वेश्चन, लाइक आई यूज्ड टू कम टू द क्वेश्चंस। द रीजन बीइंग इज दैट अगर तुम पैसेज पढ़ने लग जाओगे, पहले टाइम बहुत लगेगा तुम्हें वो चीज को रीड करने में, एंड यूजुअली बिकॉज इट्स रीडिंग बेस्ड, तुम नहीं चाहते हो कि तुम ऐसी चीज पे टाइम लगाओ जो इतना वर्थ ना हो। मे बी दूसरी चीजें, लाइक अगर वो पैसेजेस पढ़ने के अलावा मैं एक और इंग्लिश का पैसेज सॉल्व कर सकती हूँ जो मुझे 5 मार्क्स ज्यादा दे देगा, दैट वुड बी बेटर। So I feel personally that reading passage is not like you should do it. Just read 1 or 2 lines to get a sense of it. Or how many passages of CLAD did you actually studied before, or did you actually study before in your during your preparation journey? तो जो 7 टॉपिक आए थे CLAD में, how many did you have you studied before in during your preparation? 7 में से? Yeah, I think so. I've studied them before, but that might be a question कि ऐसा होगा कि इतनी डिटेल में नहीं पढ़े होंगे, because some of the questions were like 1-2 questions तो बहुत डायरेक्ट थे, because I had prepared for A-Lit also, so NLU Delhi का एग्जाम A-Lit, उसमें 1 लाइनर्स आते होते थे, तो 1 लाइनर्स की वजह से मेरे को ये पता था कि लेट्स से वर्ल्ड वाटर डे किस दिन सेलिब्रेट होता है, बट उसकी थीम या उसके नीचे वाले क्वेश्चंस मुझे थोड़ा बहुत वो चाहिए था, बिकॉज एंड वो ढंग से रिवाइज भी नहीं किया था, कभी किया था किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जब वो इम्पोर्टेंट था, बट उसके बाद नहीं किया। बट यू टेक अ मिनट एंड यू सी द ऑप्शंस, राइट? एंड दिस इज अ स्ट्रेटेजी लाइक दैट आई हैव डन। आई एम नॉट गुड विद मेमोरी, मैं जेन्युइनली आई एम नॉट समवन जिसको सारे नाम याद रहेंगे, अभी भी मुझे नाम नहीं याद चीजों के। बट जो मैं चीज करती होती थी, instead of directly like after reading the questions I used to see the options, at least मुझे फिगर आउट हो जाता था ऑप्शंस देख के कि हाँ ये मैंने नाम कहीं पढ़ा है एंड ये इसी के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा है। तो even if you're not good with remembering the names per se, the like for example many names like have 3 or 4 words in a name, right? Do not remember the whole of the name, remember just a part of it, और remember कि अगर तुम्हें ये पेपर में आया तो तुम बता सकते हो, बिकॉज जो नेम्स होते हैं पेपर में वो भी बहुत ही अलग होते हैं। इट्स नॉट कि वो सिमिलर साउंडिंग नेम्स दे देंगे कि वहां पे बैठ के तुम कंफ्यूज जाओगे कि स्टार्टिंग कैसे हुई थी नेम की, बट यूजुअली दे आर वेरी लाइक डिफरेंट नेम्स, तो तुम सिर्फ देख के बता सकते हो कि ये नेम पड़ा हुआ है पहले और ये आएगा, मतलब ये इसका आंसर होगा। Your last 1-2 question और बचे हैं, and then we will allow you to go because you've been very kind to give us a lot of time.
another question is, how many times did you revise your GK for current affairs? I'm not sure how many times I did, but I think so. For anyone who's preparing GK, the number should be enough that you remember things. For example, if your memory is very strong, then doing it once or twice would be sufficient. But if your memory is not strong, then you have to revise things. And maybe make sure when you revise things कि तुम्हारी दिमाग में वो चीजें रहें. Like try to somehow make sure कि ऐसा ना हो कि you're just passively reading and बाद में अगर तुमसे कोई 1 मिनट बाद में पूछे कि क्या पढ़ा तुमने, you'll be like कुछ तो पढ़ा था, याद नहीं. वो चीज नहीं होनी चाहिए. Like you should remember things, and that is the whole point of reading, right? कि बाद में तुम्हें याद रहे, and make sure you have good period. Like it's not कि तुम्हें 1 दिन के लिए उस चीज को याद रखना है, 2 दिन के लिए, तुम्हें बहुत टाइम के लिए याद रखना है. And इसलिए I don't feel एक बार पढ़ने से it would be a good, like you can remember things. You need a lot of time for that. So make sure you revise 2, 3, 4 times as your memory allows you to. Okay, thanks a lot, Priyanshi. Thanks a lot for taking out time for this interview. I really wish कि ये आपका videos every CLAT aspirant should see, because it has a lot of myth buster regarding GKs and regarding current affairs. So that will be really helpful for all the CLAT aspirants. Thanks a lot from Team Nerdos, and thanks a lot from all the CLAT aspirants who are watching this. Thanks a lot, Priyanshi.